Good morning, students. In this today lecture, we will discuss about the other testing parameter of IC engine. In the last lecture, we have already discussed about the indicated thermal efficiency, brake thermal efficiency, mechanical efficiency, and the term volumetric efficiency. And further, in this chapter, we will go the next parameter, that is the relative efficiency or efficiency ratio. The notation of this we will utilize, that is eta REL, yani relative efficiency. Students, relative efficiency or efficiency ratio is the ratio of thermal efficiency of an actual cycle to the ideal cycle. जो relative efficiency we will define, it is the ratio of actual thermal efficiency divided by year standard efficiency. As you are seeing कि जो एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी का रेशियो रहेगा एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी के साथ में, दैट इज योर रिलेटिव एफिशिएंसी. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस टर्म इज यूटिलाइज इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. तो द एफिशिएंसी रेशियो इज वेरी यूजफुल क्राइटेरिया विच इंडिकेट द डिग्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इंजन. बेसिकली जो एफिशिएंसी रेशियो है या रिलेटिव एफिशिएंसी है, इट विल इंडिकेट द डिग्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इंजन, कि आपका इंजन कितना डेवलप हुआ है, उस चीज़ को डिनोट करती है आपकी रिलेटिव एफिशिएंसी. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फर्दर if we will go, that is the mean effective pressure. The mean effective pressure, the short notation of this mean effective pressure is PM. As mean effective pressure is the average pressure inside the cylinder of an internal combustion engine based on the calculated or measured power output. बेसिकली जो मीन इफेक्टिव प्रेशर होगा स्टूडेंट्स, इट इज़ द एवरेज प्रेशर जो हम मेज़र करेंगे सिलेंडर के अंदर, जो आपका बेस्ड होगा पावर आउटपुट के बेसिस पर. ठीक है, तो जो एवरेज प्रेशर मेंटेन होता है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर, दैट इज योर मीन इफेक्टिव प्रेशर. It increases as modified pressure increases. When we will increase the pressure, then this average pressure will increase or mean effective pressure will increase. For any particular engine, for any particular engine operating at a given speed and power output, अगर कोई इंजन एक पर्टिकुलर स्पीड और पावर आउटपुट पर ऑपरेट हो रहा है, देन देयर विल बी ए स्पेसिफिक इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर. तो वहाँ पर एक टर्म डिफाइन करेंगे, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, और शॉर्ट में इसको लिखेंगे IMEP, यानी इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, एंड ए करस्पॉन्डिंग ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर. ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग वी विल ऑल्सो डिफाइन another mean effective pressure, that is a brake mean effective pressure. तो they are derived from the indicated and brake power respectively. यानी कि जो आपका इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर और ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, बोथ टर्म आर ड्राइव्ड फ्रॉम द इंडिकेटेड पावर एंड फ्रॉम द ब्रेक पावर रेस्पेक्टिवली. ओके स्टूडेंट्स, तो जो इंडिकेटेड पावर होगा, ठीक है, तो इंडिकेटेड पावर इज गिवन बाय द फॉर्मूला PIM LAN PIP. IP means indicated power is equal to PIM LANK divided by 60 into 1000. PIM यानी indicated mean effective pressure, L is the length of the stroke, A is the cross section area, N is the number of cylinder, and K is a factor. Then the indicated mean effective pressure can be written as, indicated mean effective pressure को कैसे लिखेंगे, PIM is equal to 60,000 IP इंडिकेटेड पावर इंटू LANK. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिमिलरली द ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर कैन बी गिवन एज, जैसा हमने यहाँ पर इंडिकेटेड प्रेशर इंडिकेटेड पावर की सहायता से हमने इंडिकेटेड प्रेशर को डिफाइन किया, सिमिलरली वी कैन ऑल्सो डिफाइन द ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, दैट इज ऑल्सो गिवन बाई 60,000 इंटू BP डिवाइडेड बाई LANK. ओके स्टूडेंट्स,
As here we are defining the terms PBP, brake mean effective pressure, 60,000 into BP for brake power, and LA and K. And this terminology is here. IP stand for indicated power in kilowatt, PIM stand for indicated mean effective pressure in Newton per meter square, L is the length of the stroke in meter, A is the area of the piston in meter square, and capital N is the speed in revolution per minute यानी RPM, और small n is the number of power stroke. स्मॉल n क्या है आपका? नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक, यानी कैपिटल N/2 फॉर 4 स्ट्रोक. अगर 4 स्ट्रोक इंजन है तो उसमें जो नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक कितने रहेंगे? N/2. और इफ इट इज़ 2 स्ट्रोक इंजन तो जो नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक रहेंगे वो कितने रहेंगे? कैपिटल N. बिकॉज क्योंकि 4 स्ट्रोक इंजन में 2 रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट में वी विल गेट 1 पावर स्ट्रोक, दैट्स वाई हाफ. And in the 2 stroke engine, in 1 revolution of the crankshaft we will get 1 power stroke. That's why n is equal to capital N/2 and n for 4 stroke and 2 stroke engine respectively. And K is the number of cylinder. K यहाँ पे जो term है that is a constant. I have already known to you. जहाँ पर K क्या आपका? number of cylinder. Suppose 8 cylinder engine, 6 cylinder engine, 5 cylinder engine, that's one. Another way of specifying the indicated mean effective pressure PIM is from the knowledge of engine indicator diagram. जो दूसरा तरीका है जिससे हम इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं वो है आपका इंजन इंडिकेटर डायग्राम. तो PIM को डिफाइन कर सकते हैं. इट कैन बी डिफाइंड एज एरिया ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम. तो PIM कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम टू द लेंथ ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम. वेयर यहाँ पे बता रखा है लेंथ ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम इज गिवन बाय द डिफरेंस बिटवीन द टोटल वॉल्यूम एंड द क्लियरेंस वॉल्यूम. So dear students, if you will calculate the length of the indicator diagram, that is equal to the difference between the total volume V minus clearance volume VC. VC और V के बीच का जो difference होगा that is known as length of the indicator diagram. Area of indicator diagram we can calculate easily. Next आता है students, that is mean piston speed. जो मीन पिस्टन स्पीड है, जो नेक्स्ट पैरामीटर है, वी विल डिनोट इट एज पी बार. ठीक है, मीन जो पिस्टन की जो स्पीड है उसको एस पी बार से डिनोट करेंगे, पी फॉर पिस्टन. तो एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर इन इंजन एप्लीकेशन इज द मीन पिस्टन स्पीड एंड इट इज डिफाइंड एज एस पी बार इज इक्वल टू 2LN. L is the stroke length and n is the rotational speed of the crankshaft in RPM. यानी कि यहाँ पर SP बार आपकी क्या है स्टूडेंट्स? दैट इज द मीन पिस्टन स्पीड विच इज इक्वल टू 2 into L into N. L is the stroke length and N is the rotational speed of the crankshaft. Here we was discussing about the mean piston speed. SP bar is equal to 2L into N. So it may be noted that SP bar is the often a more appropriate parameter than crank rotational speed for correlating engine behavior a function of speed. यानी कि जो mean piston speed है that is also a important parameter that is utilized further. Next student, resistance to go flow into the engine or stresses due to the inertia of the moving parts limit the maximum value of SP bar to within 8 to 15. यानी कि जो गैसेज हैं विच विल फ्लो इनटू द इंजन, उनकी वजह से क्या होगा? रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे और स्ट्रेसेस क्रिएट होगा ड्यू टू द इनर्शिया इफेक्ट ऑफ द मूविंग पार्ट्स. इनकी वजह से जो पिस्टन की स्पीड होगी, एवरेज स्पीड ऑफ द पिस्टन, वो 8 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड की लिमिट के बीच में होगी. तो जो मोस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल इंजन ऑपरेट एट हायर स्पीड एट हायर एंड एंड लार्ज मैरिन डीजल इंजन एट लोअर एंड ऑफ दिस रेंज ऑफ द पिस्टन स्पीड. यानी पिस्टन स्पीड की जो रेंज है 8 to 15 मीटर पर सेकंड है,
फॉर मोस्ट ऑफ द इंजन्स। तो जो आपके मोस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल्स इंजन है, ठीक है, वो आपके हायर एंड यानी अराउंड 14 टू 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर रन करते हैं। और जो बड़े लार्ज मैरिन डीजल इंजन्स हैं वो आपकी जो मिनिमम लिमिट है एटलीस्ट 8 टू 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर रन करते हैं, यानी पिस्टन की स्पीड 8 टू 10 मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट पैरामीटर स्टूडेंट्स है आपका स्पेसिफिक पावर आउटपुट PS। तो जो स्पेसिफिक पावर आउटपुट of an engine is defined as the power output per unit piston area and is a measure of the engine designer's success in using the available piston area regardless of the cylinder size। बेसिकली जो आपका स्पेसिफिक पावर आउटपुट होता है किसी भी पर्टिकुलर इंजन का, वो डिफाइंड होता है स्टूडेंट्स बाय द पावर आउटपुट पर यूनिट पिस्टन एरिया। कि पर यूनिट पिस्टन एरिया हम कितनी पावर आउटपुट हमें मिल रहा है। सपोज ए इज़ द एरिया ऑफ द पिस्टन एंड वी आर गेटिंग 40 एज द ब्रेक पावर, then if we will define the specific power output which is denoted by PS, P for power output, S for specific, it will be the ratio of brake power to the area of the piston। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉर्मूले में ब्रेक पावर इज द विच वी विल गेट एट द आउटपुट शाफ्ट, बट ए इज द एरिया ऑफ द पिस्टन। नेक्स्ट, द स्पेसिफिक पावर कैन बी शोन टू बी प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन इफेक्टिव प्रेशर एंड मीन piston speed। If we will find out specific power output, then we will get constant into PM, brake mean effective pressure into PS bar। तो H can be seen the specific power output consist of two element, यानी specific power output में दो elements होते हैं। नेक्स्ट जो पैरामीटर है स्टूडेंट दैट इज स्पेसिफिक पावर आउटपुट PS। Specific power output of an engine is defined as the power output per unit piston area। I think this I have already discussed। Specific power output is defined as the brake power which we are getting at the output shaft divided by total piston area। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो इट विल कम इनटू द कांस्टेंट इनटू P ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर एंड SP बार इज द स्पेसिफिक स्पीड, जो पर्टिकुलर स्पीड रहेगी। तो द स्पेसिफिक पावर कैन शोन टू बी प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन इफेक्टिव प्रेशर एंड मीन पिस्टन एरिया, मीन इफेक्टिव प्रेशर एंड मीन पिस्टन एरिया। As you can see here, as we can see the specific power output consists of two elements। तो जो स्पेसिफिक पावर आउटपुट होता है उसमें दो एलिमेंट्स होते हैं। वन इज द फोर्स अवेलेबल टू वर्क एंड अनदर वन इज द स्पीड विद विच इट इज वर्किंग। दो पैरामीटर है यहाँ पर, वन इज वर्क एंड अनदर वन इज द स्पीड जिससे ये काम हो रहा है। थस फॉर द सेम पिस्टन डिस्प्लेसमेंट and brake mean effective pressure, an engine running at higher speed will give a higher specific output। तो अगर हम बात करें सेम पिस्टन डिस्प्लेसमेंट की और अगर उस पर आपका जो ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर है वो सेम है, तो इंजन विच इज़ रनिंग एट हायर स्पीड will give high specific output and the engine which is running at lower speed will give lower specific output। Hence it is clear that the output of an engine can be increased by increasing either the speed or the mean effective pressure। If we will increase the speed or mean effective pressure, then we can increase the power output of the engine। Increasing the speed involves increasing in the mechanical stresses of various engine components। If we will increase the speed of the engine, then it will also increase the various parameters or various stresses in the different component of the engine। So for increasing the brake mean effective pressure, better heat release from the fuel is required and this will involve more thermal load on engine cylinder। यानी कि if we want to increase the brake mean effective pressure, better heat should be released from the fuels। So it is required to release the better heat from the fuel
and this will involve or this will increase the thermal load of the engine cylinder. नेक्स्ट टर्म आता है स्टूडेंट इसमें, दैट इज स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन SFC. ठीक है, जो नेक्स्ट टर्म है वो है आपका स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन. दिस इज स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन SFC. तो जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फ्यूल कंजप्शन पर यूनिट टाइम टू द पावर. यानी फ्यूल कंजप्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंजन आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इन किलोग्राम ऑफ फ्यूल पर किलोवाट हावर. यानी कि जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन हम डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं इन किलोग्राम ऑफ फ्यूल पर किलोवाट हावर. इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर दैट रिफ्लेक्ट हाउ गुड द इंजन परफॉर्मेंस इज. ये चीज़ रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी इंजन की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है. नेक्स्ट, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन एंड इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन आर एब्रीविएटेड एज. यानी ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन को हम लिखते हैं BSFC और इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन को हम लिखेंगे ISFC. आर द स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेक पावर and on the basis of indicated power respectively. And this is the last term, that is the inlet valve Mach index Z. In a reciprocating engine, the flow of intake charge take place through the intake valve opening. तो जो आपका रेसिप्रोकेटिंग इंजन होता है स्टूडेंट्स, उसमें जो आपका फ्लो होगा विद इन द इंटेक valve within the engine cylinder, that will take place through the intake valve opening which is varying during the induction operation. तो जो आपका इंडक्शन का प्रोग्राम होगा, यानी जो जब आपकी चार्ज इनलेट करेगा सिलेंडर पिस्टन के अंदर, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर जो आपकी इनलेट वाल्व का जो मैक इंडेक्स होगा वो हम डिफाइन करेंगे स्मॉल यू से. Also the maximum gas velocity through this area is limited by the local sonic velocity. Thus gas velocity is finally chosen by the following equation. तो जो गैस की velocity u है उसको हम डिफाइन करेंगे AP divided by CI into AI into में VP से. Here you are seeing as u is the gas velocity through the inlet at smallest flow area, AP is the piston area, AI is the nominal intake valve opening area, CI is the inlet valve flow coefficient. ठीक है स्टूडेंट्स, और U अपॉन अल्फा का इफ वी विल फाइंड आउट द रेशियो, तो U क्या आपका AP अपॉन में CI इंटू में AI इंटू में VP और ये नीचे क्या हो जाएगा अल्फा. तो ये जो फर्दर आपका जो रेशियो आएगा ये आएगा B, ये एरिया ऑफ पिस्टन का एरिया लिख देंगे, AI नॉमिनल इनटेक वाल्व ओपनिंग का एरिया लिख देंगे. तो अगर पिस्टन का जो B इज द सिलेंडर डायमीटर और DI इज द इनलेट वाल्व डायमीटर, तो पाई 4 D स्क्वायर, तो ये B बाई DI का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा VP इंटू में CI इंटू A इज इक्वल टू Z. ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू.